अक्सर जोगियां नूं समझिया जाता है कि जोगी सिर्फ सप ही फड़ते ने। बहुत सारिया फिल्मां बनिया किते बीन बजाते यार सप निकल आउंदा, कोई नागन बन जाती है। अच्छा बीन सप फड़न दे काम आउंदी जां होर काम आउंदी है? तो ये तो अपना बीन को सपों के लिए थोड़ी है, ये तो अपना बजाने के लिए है। शीला दीक्षित ने प्रोग्राम करवाया था सेंट्रल पार्क में दिल्ली में, 100 बीन बजी थी, तो उसमें तो सपने निकले। 3 दिन प्रोग्राम किया। ढोल बजदा ना था सपां दा, कल्ली बीन बजाया भावें आ जांदा होवे। कल्ली नहीं, बीन कितनी बजती है। अच्छा भी कहते ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ? हमारे तो सवेरे से सांप अपने उसमें लेकर सोते थे रजाई में। अच्छा। सर्दी में है, अब वो हमारे बुजुर्ग बताते बताते मर गए। अब जब से उसमें बैन लग गया था वो सभी छोड़ दिया, नहीं पकड़ते नहीं रखते। अच्छा बापू जी ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? वो देखो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो सुरमा बनाते थे, वो सुरमा बना कर देते थे, वो आँखों में डालते थे, तो उससे बताऊँ ये आँखों की रोशनी बनी रहती थी। कितनी बीन बजाओ आँखों पे जोड़ने की। ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਮਮੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਈ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਮਮੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हमारे को फोन आता है कि भाई सप निकला है घर में, उसको फड़ ले जाओ। हमें ये कह देते कि हम नहीं पकड़ेंगे। अच्छा बीन बनती किवें है ये भी दस दो सानू जरूर। ये लोग की होती है, जैसे घिया होता है, ये कड़वी होती है, ये बांस होता है, ये पीतल की पंप होती है, ये मोम होता है मधुमक्खी का, ये लगाए ऊपर रीढ़ लगती है उसकी नर्सल की। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੀਨ ਵਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਉਹ ਅਖਵਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਹੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੱਪ ਹੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਨ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੀਨ ਹੈ? हाँ जी ये बीन है जी हमारी। ਅੱਛਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? हाँ सबसे बड़े गुरु गोरखनाथ ही है जी। कानीपा जो है वो हमारा गुरु था, और कानीपा और गुरु गोरख ने ये गुरु भाई थे। हाँ जी उनकी संप्रदाय ये चली आ रही है, इसी से हमारा काम चलता था पहले। वो हमारा अब सरकार ने वो तो बंदी कर दिया, अब तो ये संगीत कला थोड़ी सी चल रही है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੱਪ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? सुरमा उरमे का काम था पहले, आँखों के वास्ते सुरमा अब भी बना लें। और बस ये पहले बड़े बूढ़े सांप पकड़े करे थे, बीन बजाए करे थे, खेल तमाशा करे करे छोड़ दे करे थे जंगल में, उसी से अपने बच्चों का पेट पालन करे करे थे। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये दर पीढ़ी दर का जी हमारा खानदानी पेशा था, बुजुर्गों से ही, शुरू से ही इसी से हमारा पालन पोषण बच्चों का करे करे थे। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये तो हमारी दर पीढ़ी से चला आ रहा। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? हमारी उम्र होगी 65 साल। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ना बस यही है, अपना ढोल वोल बजाते हैं, अपने पाल्टी वाल्टी बजाते हैं, बस बच्चे तो यही काम करते हैं। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਡਲੀਆਂ ਯੋਗਨਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ? देखो सर, हमें वैसे देखो हमारे गुरु गोरखनाथ कानिपा की प्रणाली से हमें नाथ लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे सांप रखते थे, बीन बजाते थे, गांव-गांव में वो खेल तमाशा करते थे। जब से बैन लगा है तो हमने भी ये सोचा जब बैन लग गया है तो सांपों की आज़ादी छोड़ तो उनको छोड़ दी। तो अब बच्चे हमारे जैसे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वो लड़कियां भी पढ़ रही है, MA BA कर रही है, नौकरी भी कर रहे हैं। अब जिनके नहीं है पढ़ रहे हैं तो अपना ढोल वो और दूसरा नासिक उसे जो भी बजा के या प्राइवेट नौकरी लगा करके वो भी करते हैं। अब जैसे ये प्रोग्राम है हमारे, ये मंडली क्या दिल्ली में भी है ये बीन जोगी, और हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, सिर्फ एक बिहार में नहीं है ये बीन जोगी। तो ये जैसे है ना, ये हमारी संस्कृति है ये पुरानी, कि सांप तो छूट गए पर ये जो बीन की है संस्कृति, इसको तो नहीं छोड़ सकते जब तक ज़िंदगी है। तो जब तक बजाएंगे इसे, जैसे अब हम प्राइवेट भी प्रोग्राम करते तो अब ये सरकारी है, जैसे पटियाला जोन से है, इलाहाबाद जोन से, आर्ट कल्चर से है, जैसे दिल्ली में ये जो भी है वो बुलाते हैं, वो हमें बताओ वो देते हैं मौका। जैसे यहाँ पर बुला रखा है कलाग्राम में, अभी 4-5 दिन के लिए बुलाया है, अब हमें बुलाया, फिर और दूसरी कोई जो बिन जोगी ग्रुप होगा उनको बुलाएंगे, फिर और किसी को बुलाएंगे, ऐसे 2-3 दिन का सब कोई ये मान सम्मान करते हैं। तो हमें ये चाहते हैं कि हमारे को जो सरकार दे रही है ये प्रोग्राम, तो ये हमारी संस्कृति जगाने के लिए दे रही है, और हम भी चाहते हैं कि देते ही रहे। जैसे प्राइवेट तो करते हैं, उनसे भी हमारा पाल पोषण हो जाता है। जब ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? प्राइवेट में जैसे शादियाँ होती है उसमें शादियों में बीन बजाते हैं। शादियाँ में बीन बजती है। ये तो यहाँ तो 10 लोग है, वहाँ पर 20-20, 50-50 लोगों की भी बीन बजती है। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ दिल्ली होया, नोएडा होया, गुड़गांव, हरियाणा कहीं भी होया, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल से लेके वो आंध्र प्रदेश कहीं भी है, गुजरात होया। अभी मैं 28 तारीख में वहाँ गुजरात गया हुआ था। वो जैनियों में दीक्षा लेते हैं तो उसको बरगोड़ा बोलते हैं, तो उनकी झांकी निकलती है, वो लड़की हो या लड़का हो, वो दीक्षा वो उनमें अपने जैन धर्म में वो मिल जाते हैं, वो अपने घर से वास्ता छोड़ देते हैं, कोई उनका घर का वो नहीं रहता। तो आज प्राइवेट ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? नहीं सार, ये बीन होता है, तुम्बा होता है, ढोल होता है, मजीरा होता है, खंजरी होती है, ये लेकर जाते हैं। ਜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਢੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜੀਰਾ ਖੰਜਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਨ ਹੀ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ? बीन और बुगचू होता था तुम्बा, पहली बीन और ये बुगचू यही बजा खंजरी, ਮੇਨ ਸਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਨ ਹੀ ਆ? बीन ही है सारे का। तो अब तो यही चाहते हैं हम सरकार से भी, और अब जब सांप छूट गए तो अब ये, तो हमें भी ये है कि हमें कहीं अपने उनमें बुलाया जाए प्रोग्राम, जैसे जन्मदिन हो या शादी हो, रिसेप्शन पार्टी हो, तो बुलाते हैं। तो और भी ये चाहते हैं कि सब लोगों को ये पहचान पहुँचे। वैसे तो यूट्यूब चैनल पे सब पे भेजते हैं हम बीन पार्टी, ऐसे यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, राजकुमार सफेरा बीन पार्टी से बना हुआ है, तो उस पर दुनिया देखती है, उसी से हमारी बुकिंग हो जाती है। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ? सुनो, हमारे जो है ना जो बच्चे हैं सब पढ़ लिख रहे हैं। अब इसके में तो जो कर रहे हैं जो वो ही कर रहे हैं। कोई गांव में देहात में कोई 1-2 बच्चा कोई बताऊं बीन सीख सकता है, वो तुम्बा सीख सकता है, और नहीं और सब अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, अपना घर का धंधा कर रहे हैं। और ये नहीं है जैसे प्राइवेट काम कर रहे हैं, ढोल ढमका जो भी है कुछ बजाते हैं अपना, पर ये नहीं है कि बीन ज़्यादा सीख जाए, बच्चे बीन नहीं सीख रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? वो देखो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो सुरमा बनाते थे, वो सुरमा बना के देते थे, वो आँखों में डालते थे, तो उससे बताऊँ ये आँखों की रोशनी बनी रहती थी, कितनी बीन बजाओ आँखों पे जोर नहीं कोई पड़ता था। ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ? हाँ, अभी पांदे हैं जी। ਅੱਛਾ, ਅਸਲੀ ਮਮੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਈ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਮਮੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मिलता ही नहीं ममीरा, कहाँ मिलता है? असली ममीरा ਮਮੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲੀ ਮਮੀਰਾ?
ये तो सर्दियों में बनता है, सर्दियों में बनता है। पूरी पूरी विधि क्या है, ममीरा बनाने की विधि क्या है पूरी? मैं बताता हूँ ना कि ये जो ममीरा था, ये बड़े बुजुर्ग थे, कोई जंगल में से ये लाते थे, उसमें कितनी चीज़ें वो करके जब वो आँखों में वो थोड़ा, कोई ममीरा नहीं डाला जाता है, कोई ममीरा कोई ऐसा थोड़ी है कि उसे उठा के ले आओ, ये ममीरा कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं पड़ा है कि उसे किलो 2 किलो ले आओ। विधि की बनाने दी? वो बनाने ये बस वो थोड़ा बहुत ममीरा जो मिलता था कहीं जंगल में से, वो बड़े बुजुर्ग लाते थे, उसमें यही ला कर ये जो कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाकर। और अब बताऊँ ममीरा तो कहाँ ख़त्म ही हो गया, जब जंगल में जाते ही नहीं है, सांप भी पकड़ते जब ही लाते थे, और अब सांप ही बंद कर दिए तो कौन जंगल में जाता है। तो इसलिए ये ममीरा उमीरा कुछ अब तो सब खत्म, दवाई जड़ी बूटियाँ सब खत्म। अब तो हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ ठीक हो। अब कोई सपेरों के पास कोई नहीं, अब कोई जाए, कोई बंगाली है, कोई है, कोई झूठ बोल कर बेचता है मैं ठीक कर दूँ, आप ही खुद ठीक हो जाओ, दुनिया को क्या ठीक करेगा। अच्छा आ जाओ अगे आ जाओ, उठ के आ जाओ तुसी। अच्छा अब सप में हम तो बताऊं, जो हमारे को फ़ोन आते हैं, हमारे को फ़ोन आता है कि भाई सप निकला है घर में, उसको फड़ ले जाओ। हमें ये कह देते कि हम नहीं पकड़ेंगे, उस पर जाओ फॉरेस्टर वालों को, उनको फ़ोन करो, और उसको नहीं करो तो 100 नंबर पर फ़ोन करो, पुलिस वालों को, वो बता देंगे आपको नंबर। तो सप फड़ नहीं जाते? हाँ वो हम नहीं जाते फड़ने के लिए साहब। ਬੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਗਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀਨ ਸੱਪ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। ये तो ऐसा संगीत है, इतना ये पुराना संगीत है दुनिया के, कि ये घास फूस का बाजा है, इसमें तो इतना सुर लगता है। ये अपनी परंपरा की धुनें निकलती है, फिल्मी धुनें निकलती है, हरियाणा धुनें निकलती है, राजस्थानी धुनें निकलती है, और वो गुजराती धुनें निकलती है। इसमें ये तो ऐसा साज है, सब चीज़ किस्म इसमें बाजा बजता है। तो ये तो अपना बीन को सांपों के लिए थोड़ी है, ये तो अपना बजाने के लिए है। ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है कि बीन सिर्फ सप फड़न ली है। नहीं सर, ये कोई नहीं सप, और सप आता भी नहीं बीन पे। ऐसे तो बीन बजाते हैं, हम बताऊँ प्रोग्रामों में कितना 100 बीन बजाई हमने। ये जो शीला 2007 में शीला दीक्षित ने प्रोग्राम करवाया था सेंट्रल पार्क में दिल्ली में, 100 बीन बजी थी, तो उसमें तो सपने निकले। 3 दिन प्रोग्राम किया, फिर 100 आदमियों का प्रोग्राम 2007 में बजाज वालों की शादी हुई थी याद होटल में, 100 आदमी, वहाँ पर तो सपने निकले। और फिर उससे बाद में इटली गए नए प्लस 100 आदमी, वहाँ तो सपने निकले। 80 बीन थी, 15 तुम्बे, 4 खंजरी, 1 ढोल, वो बजाया। ढोल करके सब डर गया होता, पर बीन ना भावे कली निकल नहीं। और उससे बाद में तारामती, हैदराबाद में तारामती बारादरी में 100 बीन बजी, वहाँ नहीं निकले। ये सर ढोल वाजदा ना था सपां नु, कली बीन बजाया भावे आ जांदा होवे। कली नहीं, बीन कितनी बजती है, ये कला है, ये नहीं है। कोई सप नहीं निकलता है ऐसे सपने के। एक सांप पकड़ने में बहुत जोर लगता था, जो सपेरा सांप पकड़ता था, वो उसका चूहे का बिल है, उसमें खोद के बहुत दूर तक जा पकड़ता था। बीन से ही नहीं पकड़ सकता है सांप। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? अरे सर अब बताऊं क्या पता किसने रखा है किसने नहीं रखा, हमने तो रखा ही नहीं ज़िंदगी में सांप। अब हमारे जो छोड़ दिए, अब सांपों को बताऊं उसको कैसे ही रखा है। अच्छा को हमारे तो सपेरे से सांप अपने उसमें लेकर सोते थे रजाई में, सर्दी में है। अब वो हमारे बुजुर्ग बताते मर गए। अब जब से उसमें बैन लग गया था, वो सभी छोड़ दिया, नहीं पकड़ते नहीं रखते। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ये इससे भारत का कोई कोना नहीं बचा जो नहीं किया है। शादी ब्याह में शोभा यात्रा, जैसे राम बारात निकलती है, ये जैनियों के वो जुलूस निकलते हैं, वो बोलते हैं, उसमें भी गए हैं, शादियों में भी गए, बाहर भी गए हैं, इटली भी गए हैं, तो ये बीन लेके गए हैं अपना। तो सब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ मैं अपने बच्चों को देता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, पढ़ रहे थे, लड़कियों ने भी MA BA करा, सबके साथ। बीन बजा लेंगे? नहीं, वो मेरे लड़के बच्चे हैं ना, पढ़े भी है, वो तुम बच्चू तो बजाए लगते, बीन नहीं बजती। जोर लगता फिर बीन? बीन बजाने में सिखाया जाते हैं, बीन ऐसे बीन थोड़ी बजती है। बीन में तो पूरा सांस लेना पड़ता है, घंटे 2-4 घंटे बीन बजा के देखो, बिल्कुल दम निकल जाता है, पर तो प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा बापू जी, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ? मैंने कोई सफ़ा पे नहीं पड़ा जिंदगी में, मैं तो अपनी कला में रहता हूँ। ਅੱਛਾ ਸੱਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? पहले बुजुर्ग रखते थे कभी,
अब मर गए गिर के बुजुर्ग, अब क्या रहे। ਉਧਰ ਵੈਸੇ ਸੱਪ ਤਾਂ ਕਿਰੇ ਆ ਜੂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ। ना ना ना, हम फड़ते ही नहीं, हमें भाग जाए ਡਰ ਲੱਗਦਾ दूर खड़े हो जाओ, जा अपने लेकर जा जंगल में। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ। जब जो सिस्टम है जिससे हमारा मतलब ही नहीं, संबंध ही नहीं रहा, तो फिर क्या है। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਬੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਬੀਨ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। सुनो ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ देखो, ਸਿਖਾਉਣਾ? बिना सीखने में तो सीखने को तो 1 साल में सीख जाए, ना सीखे जाए तो 10 साल में भी नहीं सीखी जाए। जो इसकी प्रैक्टिस करता है ना, जो छोटा 5, 7, 8, 10 साल से करेगा ना प्रोग्राम, वो सीखेगा तो वो जल्दी सीख जाता ਤੇ है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਨ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ आते हैं, बताऊँ कोई एक 2 बच्चा आता है जो सीखता है, तो उनको भी टाइम नहीं, वो स्कूल से आते हैं, फिर अपने वो पढ़ाई का काम करेंगे, बीन सीखेंगे, पर उनको जो जिसको वो है ना चस्की मुझे बीन सीखना है, तो उनको सिखाते भी हम। जैसे 1-2 कोई बच्चा है तो उनको सिखाते हुए उनको बोलते हैं, जैसे अभी जलंधर में जाते हैं ना, वो क्या बल्लम भाई, वो उनका वो जन्मदिन जलंधर में देवी तालाब मंदिर पे, तो वहाँ पर वो ऑडिशन होता है, वो तबले वाले बच्चे छोटे छोटे 5 साल से 7, 8 हरवल्लभ सम्मेलन होता है। हरवल्लभ सम्मेलन में जाते थे हम, बीन जो वहाँ पर वो जाते भी, तो वहाँ पर बोलती है मैडम, तो वहाँ पर ऑडिशन होता है बच्चों का, तो राजकुमार जी ऐसे लेकर आओ कि जो बच्चा 25 साल से नीचे हो। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ हो? हाँ जी, जो हमारी जो मैं लीडर हूँ, तो ये टीम को मैं ये अब दूर दूर से आते हैं, कुछ हरियाणा, कुछ दिल्ली से है, कुछ बाहर से, यूपी से, ऐसे कलाकारों को इकट्ठा करके जब ये टीम बनाकर जब ये प्रोग्राम करते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ? मुझे तो ऐसा लग गया था साल 2-3 साल लग गए थे सीखने। मेरे पिताजी थे, उन्होंने सिखाया, फिर एक नागिन का लहरा सीखा, उससे करते करते फिर सीख गए। ਉਹ ਨਾਗਿਨ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਾਗਿਨ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਥਿਰਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ चाहो ਤੁਸੀਂ? देखो कोई नहीं, ये जो बजाया नागिन एक सदाबहार है, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो बजाते थे, वो थोड़ी देर सुन लो। हाँ, तो बिल्कुल वो ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋਗੀ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰस्कृति, क्योंकि जिस तरीके जी ये संस्कृति को जिंदा रखने के, जब तक जिंदे है तो रखेंगे जी। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ बच्चे भी रखेंगे, जो नई ताती सीख रही है कोई एक दो आदमी। ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਬਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀਰ? अभी थोड़ा थोड़ा अभी प्रेस्टिक है, ऐसे ही जो अपना ऐसे गुरुजियों के साथ ऐसे रहते जैसे ही तुम्बा सीखा है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीख करके बीन भी सीख जाएगी। ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ? ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ? सब जोगी है, सब सब जोगी है। हाँ सब जोगी है। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तीसरी क्लास ही पढ़े हुई, ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ 7वीं क्लास पढ़े। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? अपनी होगी 25-26 साल। 25-26 ਸਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? आगे बस ऐसे हालात नहीं थे, इतना वो नहीं था, अपना बजट नहीं था। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆ ਫੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ना अपना यही रोजगार था, यही सरकार ने बंद कर दिया था। अपना बीन दिखाते, सांप बजाते थे, सांप दिखाते थे अपना। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੀਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੀਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ना थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे तब तक। ਜੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੀਨ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ये बताओ सर, ऐसा है, ये तो अब तुम्बा बजाते हैं, कोई अब शादी ब्याह में करते हैं। देखो सांपों को तो काम बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये बीन है, देखो जो नहीं है, जो ਚਲੋ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये जो है बीन है, देखो मेरे तो हिसाब से 10 साल 15 साल चलेगी। और जो कोई नई जो जनसंख्या सीख रही है, कोई एक दो है, वो अपना ही करेंगे तो वो अपना ही बताऊँ वो कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਨ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ मैं बताऊँ करता हूँ, मैं बताऊँ 2-4 बच्चों को सिखाता भी हूँ, जो है जो स्कूल से ही आते तो उनको थोड़ा छोटा छोटा बीन बना के दे रखा है, उसको बजाते हैं, उनको सिखाते हैं कि भाई आगे ये संस्कृति जगती रहे। और भी नहीं है तो मुझे उन मैम का जो जलंधर में देवी तालाब में अंदर पे जो हरी बलम आएगा उसका सम्मेलन होता है, तो उन मैम ने ये कही कि भाई 5-7 साल से और 25 साल तक के बच्चों को लेकर आओ, यहाँ ऑडिशन कराओ और उनको दिखाओ। ਅੱਛਾ, ਬੀਨ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ये लौकी होती है, जैसे घिया होता है, ये कड़वी होती है, ये बांस होता है, ये पीतल की पंप होती है, ये मोम होता है मधुमक्खी का, ये लगाए ऊपर रीढ़ लगती है उसकी नर्सल की। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਨ ਹੈ ਇਹ? बहुत पुरानी हो चुकी है, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। होगी 10 साल से। 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। तो फिर फूट जाए ये शादियों में प्रोग्रामों में उछल जाए, गिर जाए पक्की सफेद में फूट जाए। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ के विरसे नहीं सामभी होई? कौन बीन को कौन संगवा कर रखा, ये तो घास फूस का में मिनट में ही चटक जाए। जो मतलब होती है ना, जैसे लौकी की बेल जो चलती है ऐसे हर साल अब लगी हुई हैं। अब जो है अब लगी हुई है, अभी कच्ची है, वो होली के आसपास जो है जी वो पक जाएंगी, फिर उसी बेल में सूख जाएंगी। जब सूखेगी तब तोड़ी जाएगी, तब लगाई जाएगी इसमें। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।